Okay, students. So the next topic is very important derivation. Check the title. Starting with the differential equation of linear SHM. That means what we derived just now. You have to get the expressions for acceleration, velocity, and displacement. Check the sequence of the words which I have used over here. I have written acceleration first, then velocity, then displacement. Normally, we write displacement first, we take derivative of that, we get velocity, we take derivative of that, we get acceleration. So over here, we have to go ulta, yes or no. I will have to start with acceleration. In fact, I have to get acceleration first, then I will have to integrate, and then I will have to integrate one more time. So over here, we will need one very basic formula of integration. Very basic formula of integration, and you know this, and you know this, and you know this. What is integration x raised to n dx? What is it? X raised to n plus 1 upon n plus 1 with plus c, correct. C is constant of integration. जब आप लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन नहीं लिखते हो, दैट मीन्स व्हेन यू डोंट नो व्हाट इज योर स्टार्ट एंड व्हाट इज योर एंड, यू मस्ट राइट सी. एंड व्हेन यू नो क्योंकि यू विल स्टार्ट फ्रॉम x is equal to a and you will stop at x is equal to b, then you need not write this. Over here one more thing to be noted, and कुछ भी हो सकता है, -1 नहीं होना चाहिए, बराबर. बिकॉज अगर n -1 हुआ तो बेटा डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, करेक्ट. In fact, there is a formula. If it is x raised to -1 dx, if it is x raised to -1 dx, very good, it is log of x plus c, yes or no, to the base e. इसको बोलते हैं exponential, natural log. So we are going to make use of this. Check the title. We are saying that starting with the differential equation of linear SHM, we should get expression of acceleration first, followed by velocity, followed by displacement, as I have written, extremely important derivation. Okay, what is differential equation? Differential equation of linear SHM is अभी derive किया. Differential equation of linear SHM is d square x by dt square is equal to minus omega square x. Do you agree with me? First answer is super paplu, because ये खुद A है. Your first answer is very easy, because this itself is acceleration. Don't you think so? So I get the first hero of the story. Acceleration is minus omega square x. Acceleration is minus omega square x. ये समझा बेटा? जैसे ही आपका मेन आंसर आता है, you must discuss special cases. What do I mean by special cases? ये अपना path of SHM था. This was x is equal to 0. This was x is equal to plus a. This was x is equal to minus a, and this was x is equal to x. This was mean position. This was positive extreme. This was negative extreme, and this was any position. तो अभी जो आपका आंसर आया वो किधर आया? x पे. मतलब पार्टिकल इज एट एनी पोजीशन. कॉमन सेंस अप्लाई करो बेटा. ये मेरा इक्वेशन आया, a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x. ये मेरा आंसर आया, a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x. अगर x a हो जाए तो मेरा आंसर क्या आएगा? a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर a, बिकॉज x इज a, राइट. यहां पे मेरा आंसर क्या आएगा? a इज इक्वल टू प्लस ओमेगा स्क्वायर a, और यहां पे मेरा आंसर क्या आएगा? 0. You know what does this mean? Acceleration of oscillating particle at mean position is 0, and at extreme positions it is highest. I repeat, acceleration of oscillating particle at mean position is 0, and at extreme positions it is highest. Now don't think that sir minus omega square a is less than 0.
नो बेटा, माइनस साइन सिंपली इंडिकेट्स द डायरेक्शन. आपका डिस्प्लेसमेंट कौन से साइड पे है? राइट साइड पे. तो आपका फोर्स कौन से साइड पे होना चाहिए? एंड देयरफॉर एक्सीलरेशन कौन से साइड पे होना चाहिए? सो माइनस साइन डज नॉट मीन दैट दिस वैल्यू इज लेस देन दिस. नो. कैन आई से इन मैग्नीट्यूड इफ आई राइट दिस? इन मैग्नीट्यूड. पहले तो मैं इसके स्पेशल केसेस लिखूंगा. व्हाट आर द स्पेशल केसेस? व्हाट आर द स्पेशल केसेस? अभी जो मैंने लिखा है वो जनरल फॉर्मूला है. फर्स्ट स्पेशल केसेस एट x इज इक्वल टू 0 व्हाट हैपेंस? एंड सेकंड स्पेशल केसेस at x is equal to plus minus a what happens? At x is equal to 0 is my answer 0, and at x is equal to plus minus a, ध्यान से सुनो मैं क्या लिख रहा हूँ. a is minus plus omega square. अगर ये प्लस है तो मेरा आंसर माइनस आ रहा है, और अगर ये माइनस है तो मेरा आंसर प्लस आ रहा है. आना भी चाहिए. Why? Acceleration vector and displacement vector must be opposite in direction. Why? Because force vector and displacement vectors are in opposite direction. लेकिन अगर मैं ये आंसर मैग्नीट्यूड में लिखूं तो in magnitude can I say maximum acceleration will be omega square a. अगर मैं ये प्लस माइनस साइन निकाल दूं मतलब मैंने डायरेक्शन निकाल दिया. अगर मैंने डायरेक्शन निकाल दिया मतलब मैंने सिर्फ मैग्नीट्यूड के बारे में सोचा. एंड देयरफॉर कैन यू से दिस इज द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन फॉर एन ऑसिलेटिंग पार्टिकल. एक्सीलरेशन इससे ज्यादा नहीं हो सकता. फॉर एन ऑसिलेटिंग पार्टिकल एक्सीलरेशन इससे ज्यादा नहीं हो सकता है. प्लीज लेट मी नो, हैव यू अंडरस्टूड ऑल द डिटेल्स ऑफ एक्सीलरेशन? वापस एक बार हो जाए रैपिड फायर राउंड. दिस वाज डिफरेंशियल इक्वेशन. This itself is second order derivative of displacement. By definition it is acceleration and we wanted acceleration. Acceleration समझा बेटा? Sure. What is acceleration of an oscillating particle? Minus omega square x. Check the resemblance please. Check the resemblance please. Does it sound like centripetal acceleration which was minus omega square r? Does it sound like centripetal acceleration which was minus omega square r? That means there is a close relation between UCM and SHM. Yes or no? That we are going to prove also systematically. उसके बाद में क्या करने का? You take special positions. Out of these 4 positions, which are the special positions? X is 0, X is plus minus a. They are special positions. X is any position. मतलब पार्टिकल इधर हो सकता है, 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 किधर भी हो सकता है. Right? But which are the special positions? 1, 2, and 3. This is something similar to unique position in vertical circle. Lowest एक ही होता है, highest एक ही होता है, horizontal 2 होते हैं, और any position infinitely many हो सकते हैं. Yes or no? ये पार्ट समझा बेटा? फर्स्ट पार्ट समझा? Shall I start with the second part? This is also called acceleration amplitude. Acceleration amplitude. What is the meaning of amplitude? Amplitude of anything is highest value of that thing. ये किसका हाईएस्ट वैल्यू है? सो दिस इज ऑल्सो समटाइम्स कॉल्ड एक्सीलरेशन एम्पलीट्यूड. एक्सीलरेशन एम्पलीट्यूड. अगर उन्होंने खाली एम्पलीट्यूड वर्ड यूज किया ना ये चैप्टर में, दैट मींस दे आर टॉकिंग अबाउट डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड. अगर उन्होंने खाली एम्पलीट्यूड वर्ड यूज किया दैट मींस दे आर टॉकिंग अबाउट दिस या तो दिस. बट अगर आगे एक्सीलरेशन वर्ड डाला दैट मींस इट इज हाईएस्ट वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन. वेलोसिटी वर्ड डाला हाईएस्ट वैल्यू ऑफ वेलोसिटी. फोर्स वर्ड डाला हाईएस्ट वैल्यू ऑफ फोर्स. अप्लाई कॉमन सेंस. एक बार मुझे एक्सीलरेशन मिला तो फोर्स तो वैसे ही मेरे लिए सिंपल है. दिस आई एम राइटिंग दिस एज अ नोड. दिस आई एम राइटिंग दिस एज अ नोड. फोर्स इज मास इनटू एक्सीलरेशन. सो बेटा फोर्स का इक्वेशन क्या आएगा? मास टाइम्स माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स. दैट्स इट. अब इसकी ज्यादा डिटेल्स में नहीं लिख रहा हूं. व्हाट विल बी मिनिमम फोर्स? व्हाट विल बी मिनिमम फोर्स? 0. वेयर? मेन पोजीशन. व्हाट विल बी फोर्स हियर? सोच के बोलना. माइनस एम ओमेगा स्क्वायर ए. वेरी गुड. सो इफ आई राइट इक्वेशन ऑफ फोर्स हियर, विल दिस बी 0? If I write equation of force here, will this be minus m omega square x? If I write force here, will it be minus m omega square a? If I write force here, will it be plus m omega square a?
नेगेटिव पोजीशन पे प्लस आंसर, पॉजिटिव पोजीशन पे माइनस आंसर. व्हाई? बिकॉज फोर्स वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आर ऑलवेज ऑपोजिटली डायरेक्टेड. तो ये तो बेटा मैंने ऐसे ही एक्स्ट्रा नोट रखा था. नाउ आई नो दिस. So using this, will I get A, which is minus omega square x, as v dv by dx is equal to minus omega square x. अभी बेटा एक बात एकदम ध्यान से सुनो. अगर ये मैं dx लिखूं ही नहीं, my equation is senseless because with respect to निकाल दिया मैंने. इसका मतलब अगर मेरे पास v है और अगर मुझे इंटीग्रेट करना है तो dv होना ही चाहिए. अगर मेरे पास x है तो मेरे पास dx होना ही चाहिए. मैं चाहता तो एक्सीलरेशन को d2x by dt स्क्वायर लिख सकता था, मैं dv by dt भी लिख सकता था, लेकिन अगर मैं एक्सीलरेशन को dv by dt लिखता तो v का पार्टनर तो मुझे मिल गया, लेकिन x का पार्टनर नहीं मिला. तो x का पार्टनर लाने के लिए मैं उसको v dv by dx लिख रहा हूँ. समझा? इसका मतलब दिस इक्वेशन वाज सेंसलेस विदाउट dx. dx इधर होना ही चाहिए. कॉमन सेंस अप्लाई करो बेटा. इफ आई आस्क यू व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ sin x, my question is senseless. I should ask you what is derivative of sin x with respect to x. Then you will say cos x. मतलब इसका होना जरूरी है कि नहीं? समझ में आया बेटा? And therefore I am writing a as v dv by dx. ये समझा? सुपर श्योर. माइंड यू हम लोग वो फॉर्मूला यूज करने वाले हैं. हम लोग वो जो एक्सट्रीम राइट साइड पे टॉप पे फॉर्मूला वो यूज करने वाले हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल कैन आई से v dv is equal to minus omega square x dx. क्योंकि v के साथ उसका पार्टनर है तो सामने x के साथ उसका पार्टनर होना चाहिए. एंड दिस इज कॉल्ड मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स. मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स. v के साथ dv है, therefore x के साथ dx होना चाहिए. समझा? Sure. Now I am integrating this equation. Integrate the above equation. Integrate the above equation. What will you get? You will get integration v dv is equal to integration minus omega square x dx. I hope I am really slow. Right? v is a variable. अब पता कैसे चलेगा कौन वेरिएबल है? ये dv है ना, तो इसको बोलते हैं डिफरेंशियल एलिमेंट ऑफ v. चेंज इन v. दिस इज चेंज इन x. तो हु इज v? वेरिएबल की कांस्टेंट. हु इज x? वेरिएबल की कांस्टेंट. हु इज ओमेगा? वेरी गुड. बिकॉज़ ओमेगा इज 2 pi by capital T and capital T is constant. Very good. So do we say constants go out? Yes. Do we say constants go out? तो ये बाहर गया. अच्छा, ये जो v dv है उसको मैं v raised to 1 dv लिख सकता हूँ, because anything raised to 1 is the same thing. इसको मैं x raised to 1 लिख सकता हूँ. तो what will I get? Integration v dv या तो v raised to 1 dv is minus omega square out integration x raised to 1 dx. चलो बेटा, v raised to 1 dv v square upon 2. Very good. It is v square upon 2. So this gives me v square upon 2. This is equal to minus omega square as it is x square upon 2 plus c. आएगा कि नहीं आएगा? आएगा. Now you may be wondering कि सर आपने राइट साइड पे प्लस c लिखा, तो आपने लेफ्ट साइड पे प्लस c क्यों नहीं लिखा? दोनों साइड पे c लिखूंगा तो उड़ गया ना. बेसिकली द लॉजिक इज दिस. अगर मुझे लेफ्ट साइड पे भी c लिखना है तो मुझे ऐसे लिखना चाहिए, प्लस c1 इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c2, और बाद में मैं बोलूंगा c2 माइनस c1 इज c. यू सी व्हाट आई मीन? समझा? दोनों साइड पे बेटा मैं c नहीं लिख सकता ना. क्या सेंस बना फिर? और ये दोनों c सेम हो भी नहीं सकते, बिकॉज ये वेलोसिटी डिसाइड करने वाला c है और ये डिस्प्लेसमेंट डिसाइड करने वाला c, तो वैसे भी सेम नहीं हो सकते थे. राइट? सो सपोज दिस इज c1, सपोज दिस इज c2, देन कैन आई से v स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन 2
plus C2 minus C1, and therefore V square upon 2 is minus omega square x square upon 2 plus C राइट. एग्जाम में बेटा ये नहीं लिखोगे तो चलता है, एग्जाम में ये लिखना ही नहीं होता है. ये तो आप लोगों के दिमाग में थॉट आए कि सर आपने सी एक ही बाजू क्यों लिखा, दोनों बाजू क्यों नहीं लिखा, किसने लिखा मैंने. इज इट क्लियर? आप लोगों को जब भी इंटीग्रेट करते हो कोई भी एक साइड पे सी लिखना है, चॉइस इज योर्स. अगर मैं इधर सी लिखता तो मैं ऐसे बोलता कि C1 माइनस C2 को मैंने सी बोला. यस और नो. Not required in the exam. This is not required in any format. This is not required at all. बराबर? तो बेटा आप ये स्टेप से डायरेक्ट ये स्टेप लिख सकते हो. Let us call this as equation 1. Let us call this as equation 2. Let us call this as equation 3. अभी मैं अटक गया. क्यों अटक गया? Because मेरा टारगेट वेलोसिटी है. तो वेलोसिटी तो अननोन है ही, लेकिन सी भी तो अननोन है. तो मुझे ये सी को उड़ाना है, ये सी को मुझे उड़ाना है. ध्यान से सुनो मैं क्या लिख रहा हूं. एट एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस ए. कैन आई से वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल शुड बी 0 व्हेन दिस पार्टिकल इज कमिंग हियर, व्हेन द पार्टिकल इज कमिंग हियर और हियर. डज इट कम टू रेस्ट मोमेंटरीली? That means that x is equal to plus minus a, velocity becomes 0. तो जहां पे आपको x दिखता है वहां पे आप प्लस माइनस a रखो, और जहां पे आपको v दिख रहा है वहां पे 0 रखो. तो what will you get? 0 is equal to minus omega square. When x is plus minus a, the square is always a square. This is a square by 2 plus c. v is 0, x is plus minus a. राइट. तो 0 इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस माइनस ए का स्क्वायर इज ए स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी. इसका मतलब मुझे सी मिला. व्हाट इज सी? ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन 2. ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन 2. लेट मी कॉल दिस एज इक्वेशन 4. Let me call this as equation 4 and I will substitute this equation in equation 3 because I want to get velocity. Because I want to get velocity. Okay, so substituting 4 in 3, what will you get? Substituting equation 4 in equation 3 we get, yes, come on, I am going back to equation 3. V square upon 2, V square upon 2 is minus omega square x square upon 2 plus omega square a square upon 2. C निकल गया, C. और अभी V को छोड़ के मुझे सब पता है. सोचो, V को छोड़ के मुझे सब पता है. X मुझे पता है मैं इधर हूं, A मुझे पता है मैं इधर होता, राइट. ओमेगा मुझे पता है 2 पाई बाई 2. That means the only unknown is going to be V now. Can I cancel 2 throughout? So that gives me V square is equal to omega square common A square minus x square. और वैसे भी बेटा ये a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ही होना चाहिए. ये x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर नहीं हो सकता है बिकॉज v स्क्वायर शुड बी अ पॉजिटिव नंबर. सोचो आपने गलती से इसको x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर लिखा. x is some value less than a, so it should be higher minus lower. It cannot be lower minus higher, and therefore I get the second hero of the story. So who is the second hero of the story? v is equal to plus minus omega root of a square minus x square. ये महान काम मत करना प्लीज, मारूंगा पकड़ के. स्क्वायर रूट मतलब ये मत करना प्लीज. एब्सोल्यूट मिस्टेक, एब्सोल्यूट रॉन्ग, राइट. सो कैन आई से v स्क्वायर इज ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर. दैट मींस v इज ओमेगा रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, एंड दिस इज द सेकंड हीरो ऑफ द स्टोरी. This is the second hero of the story. That means it is this. That means it is this. बराबर? ये तो नहीं किया. तो इससे शेडिंग करना जो मस्त आएगा.
हैंकी दे, अरे हाथ से नहीं आप, हाँ ब्लैक नहीं दिखेगा, डोंट वरी, अभी नेक्स्ट टाइम वाइट से करवाओ। क्या मजा आता है, अपने घर में ऐसा करती है वॉल पे? नहीं करती है ना, क्योंकि वो तेरा घर है, ये तेरा घर है। अच्छा रब हो जाएगा, ये भी रब हो जाएगा। ले स्टार्ट क्यों करो? समझा? गुड मॉर्निंग, सेकंड लास्ट बेंच, गुड मॉर्निंग। You are recorded. You are sleeping before 3 minutes. Yeah. प्रूव करता हूँ। हम लोग 8:42 का रिकॉर्डिंग देखेंगे। चल कंटिन्यू। Now special cases. Now special cases. When x is 0, means I am here. When x is 0, what is my answer of v? Is it omega into a? Actually, it will be plus minus a omega. So यहाँ पे मेरा v का आंसर क्या होगा बेटा? a ओमेगा। Oh lovely, this sounds like r ओमेगा। यहाँ पे v कितना होगा? यहाँ पे v कितना होगा? x is a 0। यहाँ पे तो 0 ही होना चाहिए ना रे, वो मालूम था तभी तो c मिला था। एक्सट्रीम पे वेलोसिटी कितना होना चाहिए? 0। और यहाँ पे वेलोसिटी कितना होना चाहिए? ओमेगा रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, क्योंकि हम लोग जो कैलकुलेट कर रहे हैं दैट इज एट x, मतलब ये जनरल पोजीशन है, पार्टिकल किधर भी हो सकता है, और ये स्पेशल पोजीशन है। दैट मींस if this is mean position, what is x here? 0. What is x here? a. What is x here? Okay, if this is mean position, what is velocity here? A omega. Proud of you, very good. And what is v here? 0. Fantastic. What is acceleration here? 0. Very nice. What is acceleration here? Minus omega square. What is acceleration here? Fantastic. Force. 0. Force. Minus m omega square. M भी आएगा. Very good. Minus m omega square A. Plus m omega square A. इसका मतलब if the displacement is to the right, force is to the left, and if the displacement is to the left, force is to the right. समझा अच्छे से? श्योर? तो इसका स्पेशल केसेस क्या आएगा? इसका स्पेशल केसेस क्या आएगा? बिल्कुल उसके जैसा। स्पेशल केसेस में क्या क्या लेने का? At x is equal to 0, what happens? And at x is equal to plus minus a, what happens? At x is equal to plus minus a, what happens? Come on, at x is equal to 0. V will be a omega. And at x is equal to plus minus a, V will be 0. मतलब अगर मैं डायरेक्शन नहीं लूं, तो जैसे मैंने a max ये लिखा था, वैसे v max क्या आना चाहिए? What do you think should be v max? a omega. For an oscillating particle, velocity highest किधर होता है? Main position पे, correct. For an oscillating particle, velocity highest किधर होता है? That means when this particle is oscillating, यहाँ पे इसका वेलोसिटी 0 है, फिर यहाँ पे मैक्सिमम है, फिर यहाँ पे वापस 0 है, फिर यहाँ पे वापस मैक्सिमम है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 और मैक्सिमम के बीच का कोई वैल्यू है? यस और नो? अच्छे से समझा? श्योर? सो दिस इज माय नेक्स्ट आंसर. कैन वी कॉल दिस एज वेलोसिटी एम्पलीट्यूड? Can we call this as velocity amplitude? What is amplitude of anything? Highest value of anything. अब जैसे मैंने A से शुरू करके इंटीग्रेट करके V निकाला, V, वैसे V से शुरू करके मैं X निकाल सकता हूं, बराबर? X का डेरिवेटिव इज V, का डेरिवेटिव इज A, का इंटीग्रेशन इज V, का इंटीग्रेशन इज x. अगर मैं यहां से यहां जाता हूं तो डेरिवेटिव,
यहां से यहां जाता हूं तो डेरिवेटिव, लेकिन अगर मैं यहां से यहां जाता हूं तो इंटीग्रेशन, मैं यहां से यहां जाता हूं तो इंटीग्रेशन, एंड दैट इज व्हाट आई एम डूइंग. I started with acceleration, I got velocity, now I am starting with velocity, I want to get displacement. Velocity is dx by dt, सोचो velocity is dx by dt. Plus minus sign simply indicate the direction. So यहाँ पे मैं लिखूंगा omega root of a square minus x square. Method of separation of variable tells you, method of separation of variable tells you x के साथ x होना चाहिए, x के साथ x होना चाहिए, इधर x राइट साइड पे और इधर dx लेफ्ट साइड पे, तो मुझे दोनों को साथ में रखना है. तो कहना है से dx अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर should be equal to omega dt, should be equal to omega dt. Yes or no? What should be my next step after method of separation of variables? What did I do? Integrate. Very good. Integrate the above equation. Integrate the above equation. इसका मतलब ये हुआ कि इंटीग्रेशन 1 अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर टाइम्स dx इज इंटीग्रेशन dt. ये ओमेगा मैंने बाहर ले लिया, चलेगा? एकदम श्योर. एकमात्र ये फॉर्मूला, एकमात्र ये फॉर्मूला आपको याद रखना. दिस इज टू बी रिमेंबर्ड एंड बी हैप्पी. ये इवन पीसीएम वालों को नहीं मालूम है. पीसीएम वालों का डेरिवेटिव्स चल रहा है, इंटीग्रेशन शुरू भी नहीं हुआ है उनका. सिर्फ ये एकमात्र फॉर्मूला याद रखना है, एंड द फॉर्मूला इज साइन इनवर्स ऑफ x अपॉन a. साइन इनवर्स ऑफ x अपॉन a. सिर्फ ये एकमात्र फॉर्मूला आपको रट्टा मारना है. SBCD स्टूडेंट समझा? दिस इंटीग्रेशन इज साइन इनवर्स ऑफ x अपॉन a. नाउ ओमेगा इज कांस्टेंट. वेरी 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 इंपॉर्टेंट. व्हाट इज इंटीग्रेशन dt? वेरी गुड. इंटीग्रेशन dt इज t प्लस कोई तो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आएगा. अभी c नहीं लेने का बेटा, बिकॉज अगर आपने c लिया देन यू मे बी टेम्पटेड टू सब्स्टिट्यूट दिस. आपका टॉपिक चेंज हो चुका है. अब आप वेलोसिटी पे नहीं हो, अब आप डिस्प्लेसमेंट पे हो, तो यू कैन नॉट यूज द सेम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. इफ आई एम इन इंडिया आई एम यूजिंग रुपीज, बट व्हेन आई चेंज द कंट्री आई विल हैव टू यूज द करेंसी ऑफ दैट कंट्री. माय करेंसी इज नॉट अलाउड देयर. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? टॉपिक चेंज हो चुका है, इसलिए इसकी यूज नहीं करनी. ठीक. अप्लाई कॉमन सेंस बेटा. दिस d must be some angle. क्या लग रहा है? This d must be some angle. सोचते. Sin inverse of something क्या होता है? What is sin inverse of half? 30 degree. What is sin inverse of root 3 by 2? 60. What is sin inverse of 1? 90. इसका मतलब ये बंदा एंगल है, ये बंदा एंगल है. सोचो, रेडियन पर सेकंड इनटू सेकंड, तो ये बंदा एंगल ही होना चाहिए. इसलिए इसको कोई एंगल वाला सिंबल दो, इसलिए इसको कोई एंगल वाला सिंबल दो. तो अभी मैं इसको बोल रहा हूं अल्फा, इसको मैं बोल रहा हूं अल्फा, बिकॉज ये एंगल है और बिकॉज थीटा ऑलरेडी रिजर्व्ड है. थीटा ऑलरेडी मैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए बोल चुका हूं, इसलिए मैं इसको कोई नया नाम देता हूं. आप लोग इसको थीटा 1 बोल सकते हो, थीटा 2 बोल सकते हो, अल्फा बोल सकते हो, बीटा बोल सकते हो, गामा बोल सकते हो, जो भी बोल सकते हो, बट यू हैव टू नो कि दिस इज एंगल. मेरा टारगेट कौन है? मतलब मुझे x का इक्वेशन चाहिए. मेरा टारगेट कौन है? x, राइट? तो साइन फंक्शन को मैं शिफ्ट करता हूं. तो व्हाट विल आई गेट? x अपॉन a इज साइन ऑफ ओमेगा t प्लस अल्फा. ब्रैकेट भूलने का नहीं तो गए काम से. मान लो आपने ब्रैकेट भूल गया. यू नो व्हाट डज दिस मीन? दिस इज साइन ऑफ सम एंगल. मतलब ये वैल्यू हुआ, वैल्यू हाफ रूट 3 by 2 समथिंग लाइक दैट, और ये एंगल हुआ. हाउ कैन यू ऐड अलजेब्रा विद ज्योमेट्री? दैट्स व्हाई ये ब्रैकेट जरूरी है बेटा, ये ब्रैकेट जरूरी है. एंड देयर यू गेट द हीरो ऑफ द स्टोरी. व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ x नाउ? x is equal to a sin omega t plus alpha. Special cases in the next lecture. Special cases
in the next lecture because target accomplished. समझा कि वापिस बोलो एकदम श्योर बेटा ये सुपर डुपर इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है बिकॉज पूरा गेम इसके ऊपर है. मुझे एक बात बताओ, हम लोगों ने 3 चीजें निकाली. X represents position, V represents speed, A represents acceleration. Are all of them variables? इसमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो फिक्स है. It will change from position to position. पोजीशन चेंज हो रहा है इसलिए पोटेंशियल एनर्जी अलग होगा. स्पीड चेंज हो रहा है इसलिए काइनेटिक एनर्जी अलग होगा. लॉजिक समझा? Are you getting this? So the way we had 7 things in vertical circle, we have 7 things here also. X, V, A, force, kinetic energy, potential energy, total energy. Out of these 7 things, in the next class we are going to see only one thing remains constant. And who is that? Total energy. Rest everything will change. Is that very clear? Whenever we meet next, your DCT portion is this full derivation the way I have written. Full derivation. Is that clear? अभी तक मैंने इसका स्पेशल केसेस नहीं बोला है. रो क्या रही है? बोर्ड एग्जाम भी देना है ना अपने को खाली नीट नहीं देना है, बोर्ड एग्जाम में भी 50% लाना है. पीसीबी में विकेट उड़ती है उसमें. Yeah, of course I do. No, you have to read it in front of me. I will take my I wanted these moments to be recorded. Those who are going to ask me this question, think twice. And we have no MCQ, so we have to write. Missed out.